जॉब खुद नहीं द्रास पोको X2 है ब्रो, मौसा का पोको X2 है। कैमरा क्वालिटी बेस्ट है ब्रो उनका। पोको के कैमरा सही है। इसका MRP क्या होगा? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो where is the duster? Let's start the poem keeping quiet. ठीक है? यस मैम। Keeping quiet. I think we have started, है ना? Any problem regarding 2 lines? Starting 2 lines. You don't have any problem? No doubt? हाँ, hello? Shall I start? Okay. यस मैम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। So यस मैम। now we will count. ये तो हो चुका था ना? So what is the Yes, purpose ma'am. of keeping quiet? What is the purpose of keeping quiet? कवि आपसे बार बार कह रहा है keep quiet, keep quiet. क्या करने के लिए? If you are calm and quiet inwardly, then only you will come to know about yourself. पहला था, the first purpose was to self introspection, and the second one to create the feeling of brotherhood, to create the feeling of mutual cooperation. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So Yes. now we will count to 12. Now we will all keep still. Let's begin from the starting point of view. Count to 12. 1 to 12. 1 to 100. 1 to 100. Yes. Now we will count to 12. Hello. And we will all keep still. Try to be still. Still माने motionless. Please don't do anything. At least for a while. At least for a moment. Not forever. हमेशा के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कुछ पल के लिए, कुछ पल अपने लिए निकालो, अपने को दो, ताकि आप अपने बारे में भी विचार कर सकें और दूसरों के बारे में भी सोच सकें. Okay, now come to the next para. For once on the face of the earth, not forever, only for a while, for a moment, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, for once on the face of the earth. ये रिक्वेस्ट है उन तमाम ह्यूमन बीइंग से जो पृथ्वी पे रह रहे हैं. Just for once, केवल एक बार क्या करना है? Let's not speak in any language. किसी भाषा में बात नहीं करना है. No one need to speak in any language. Please stop your work. Whatever you are doing, just stop for a while. नहीं होता है, कभी कभी हम काम करते 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 थक जाते हैं, उसके बावजूद भी हमें लगता है oh my God, I am having lots of work, piles of work, काम का ढेर लगा हुआ है, थके हुए हैं, feeling tired, but I have to complete my mission. और काम किए जा रहे हैं, हालांकि मन नहीं लग रहा है. तो ऐसे समय हमें क्या करना है? छोड़ दो. Leave that work. Get some rest. Keep some time for you. Relax your mind. Think about yourself. Think about yourself. इतना काम क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों कर रही हूं मैं?
वाई, ये हाय हाय क्यों लगा हुआ है? छोड़ो 99 का चक्कर, कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ लम्हे अपने लिए निकालो जो तुम्हारा खुद का हो, खुद के लिए हो. Let's not speak in any language. So this is the request of the poet, not to speak in any language. किसी भी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है. माने please don't speak anything. No motion, no hurry, no chaos. Only calm and quietness. Permanent peace. That is the essential requirement for the humanity. For everyone. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second. Let's stop for 1 second. रुको. रुकने के लिए क्यों कहा गया है? Just stop for 1 second. कुछ पल के लिए रुकोगे तभी तो अपने बारे में सोचोगे. सुबह से लेकर रात तक काम करते 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 किए जा रहे हैं वर्क. जो हमारा एक्चुअल वर्क है, nourish to soul. How to nourish the soul? Outwardly हम अपने हेल्थ का केयर करते हैं, फिजिकली वी आर फिट, बट व्हाट अबाउट मेंटली? मेंटल फिटनेस कहाँ से आएगी? मेंटल फिटनेस आएगी कब आएगी? जब आप अपने बारे में सोचेंगे. ट्राई टू नो व्हाट इज योर ड्यूटीज, हु आर यू. Give some time for yourself. Meditate about yourself. मुझे करना क्या? मेरा पर्पस क्या है? मेरा एम क्या है? क्या मैं वो एम कर पाऊंगी, पूरा कर पाऊंगी? What is my direction to complete my mission? तो ये सब कुछ तभी होगा जब आप रुकेंगे, जब आप शांत रहेंगे, जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे. एंड इफ यू वांट टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, फॉर दिस यू नीड सम टाइम. यू नीड अ रियल calmness, quietness. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Not move our arms so much माने motionless. हरकत में मत आओ. Be passive. Don't do anything. ठीक है? बहुत ज्यादा एक्टिवनेस नहीं दिखाना है. कब? कुछ पल के लिए. For the time being. ये आधा घंटा, this half an hour is for me only, for me only. इस समय मुझे किसी से कुछ नहीं बातचीत करना है. I don't want to talk to anyone. Any topic, nothing. I don't want to meet to anyone. This time is only for me. और इस समय मैं अपने आप से मिलना चाहती हूँ. I want to mingle myself with me. मुझे अपने आप के बारे में जानना है, अपने मिशन के बारे में जानना है, अपने पर्पस के बारे में जानना है, अपनी लाइफ के बारे में जानना है. और ये तभी होगा जब इनवर्डली कामनेस मिलेगी आपको. और जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे, आप अपने आप को जान जाएंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लेंगे, क्रिएटिविटी आ जाएगी, तो दैट विल गिव यू अ सेल्फ कंटेनमेंट. अगर आपके मन में कोई मलाल नहीं रहेगा, कब मलाल नहीं रहेगा? जब आप अपने आप को जानोगे. नो, आई एम डूइंग माई बेस्ट. Whatever I am doing, it is good. It is good. क्यों? क्योंकि मेरी अंतरात्मा ऐसा बोलती है कि मेरा काम सही है. और मेरा काम सही है कि गलत है, ये एनालिसिस करने के लिए क्या चाहिए तुम्हारे पास? आपके पास क्या चाहिए? नीड सम टाइम. यू नीड सम टाइम, एटलीस्ट 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, हाफ एन आवर. दिन भर में थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए. ठीक है? दिन में नहीं निकाल सकते, बेड पे जा रहे हैं, वही आपका अपना समय है. उसी से मैं अपना आत्मचिंतन कर लो भाई. दिन भर आपने क्या किया, अगले दिन आपको क्या करना है. मेक अ डायरी, राइट समथिंग. और ये सब चीजें
आपको परमानेंट प्लेजर देंगी, सुकून देगा, प्रेशर से दूर ले जाएगा। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, हाथ पैर हिला हिला के बात करना। बात करता है इंसान तो जेस्चर दिखाएगा ही, मोशन आएगा ही, एक्टिविटी करेगा ही, लेकिन ये सारे एक्टिविटी को क्या करना है, स्टॉप करना है, ओनली फॉर अ वाइल, फॉर अ मोमेंट। और क्यों करना है ऐसा? जस्ट टू नो अबाउट आवरसेल्फ, अपने बारे में जानने के लिए, अपना परीक्षण करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए। तो ये पैरा समझ आया, पहला पैरा? Yes. Yes, ma'am. Any doubt? Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. No, any doubt. Very good. Very good. Okay. Now come to the next para, please. It would be an exotic moment. What a beautiful line. Exotic, unusual, entertaining, मन को मोहने वाला, full of pleasure, full of happiness. अगर आप कोई काम करते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार होता है, आपके विल के अकॉर्डिंग होता है, आपके डिजायर के अकॉर्डिंग होता है, तो रियली दैट इज द रियल हैप्पीनेस, है कि नहीं है? अगर हम अपने काम के प्रति, इफ आई एम लॉयल टुवर्ड्स माय ड्यूटी, टुवर्ड्स माय वर्क, इफ आई एम ऑनेस्ट, अगर ऑनेस्टी के साथ आई एम परफॉर्मिंग माय ड्यूटी, तो व्हाई टू स्केयर, Why to fear? डरता कौन है? जो कावर्ड है, जो कामचोर है। I am doing, I am performing my duty. तो performing your duty with honesty, with loyalty, it will give you permanent pleasure, and that moment will be the exotic moment. That moment will be the exotic moment. Exotic moment माने मन को मोहने वाला, exciting moment, thrilling moment, full of thrill, full of excitement. है कि नहीं है? That is a real reward. अपने काम करने से जो खुशी मिलती है ना? कुछ लोग काम करते हैं just to show off, दिखावे के लिए, तो वो खुशी परमानेंट खुशी नहीं रहती है। अंतरात्मा में तो कहीं ना कहीं बोल रहे हो, ओ यार मैं अंदर से काम नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, मैं ऑनेस्टी नहीं दिखा रही हूँ, मैं लॉयल्टी नहीं दिखा रही हूँ। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं किसके लिए? जस्ट सेल्फ कंटेनमेंट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। कोई देखे या ना देखे, सुप्रीम पावर इज देयर, सुप्रीम पावर इज देयर, सुपर पावर इज देयर। वो आपको हर वक्त देखता रहता है, आपका मुआयना करता रहता है, आपको वॉच करता रहता है। ठीक है, तो काम ऐसा करो जो तुम्हें एक्साइटिंग लगे, थ्रिलिंग लगे, हैप्पीनेस से भरा हुआ हो, जिसमें कोई गिल्ट ना हो। ये तभी होगा जब इनवर्डली आप पायस हैं, प्योर हैं, काम हैं, पॉइंट है। It would be an exotic moment without rush. Oh my God! Just think about today's era, today's life. कितनी गहमा गमी है, कितनी अफरा तफरी है, too much disturbance, very much chaos. है कि नहीं है? दिल और दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, ऑब्स्टिकल चल रहा है, ऑब्स्टिकल भी है लाइफ में ढेर सारे। We are always in dilemma. What to do, not to do, what to do, not to do. क्या करूं, क्या ना करूं? अरे वही करो ना जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है, जो सही है तुम्हारे लिए। Do that work. है कि नहीं है? Without rush. कितना प्यारा वो पल होगा जिसमें कोई रश नहीं है, no hurry, कोई हड़बड़ी नहीं है। Okay, no problem. कोई हरी नहीं है, नो हरी, है कि नहीं है? तो रश अगर नहीं है, केओस नहीं है लाइफ में, तो लाइफ में क्या है? केवल प्लेजर है, हैप्पीनेस है। अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, टाइम टेबल
सुबह से लेकर रात तक का आपने टाइम टेबल बना लिया है, इस समय मुझे ये काम करना है। अलॉट योरसेल्फ, गिव ड्यूटी टू योरसेल्फ एंड ट्राई टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट विद इन अलॉटेड पीरियड, विद इन अलॉटेड टाइम। जाने से पहले वो सारे काम कंप्लीट करना है। दिस इज द डिजायर ऑफ एवरीवन। जो लोग कंप्लीट कर लेते हैं दे आर हैप्पी, जो लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं दे आर द अनहैप्पी पर्सन। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। सोचो वो पल कैसा होगा। जस्ट थिंक अबाउट दैट मोमेंट जब कोई रश नहीं है, कोई हरी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई क्या बोलते हैं, कोई मशीनों की आवाज नहीं है, कोई गाड़ी की, कोई बस ट्रक की आवाज नहीं है, नो साउंड, कोई श्रिल साउंड नहीं आपको सुनाई दे रहा है। जस्ट थिंक अबाउट दैट मोमेंट। दैट मोमेंट, वो पल आपके लिए एक्साइटिंग होगा, वो पल आपके लिए एक्सोटिक मोमेंट होगा, है ना। जब आप मेडिटेशन करते हैं, पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। हेलो, Yes, ma'am. यस, ट्राई टू डू। हालांकि कठिन काम है मेडिटेशन करना। जब दिमाग आंखें बंद रहती हैं तो मजाक में मत लेना प्लीज। आंखें बंद होती, मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ मेडिटेशन करने का, कि भाई मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे बस उस सुप्रीम पावर के बारे में सोचना है, उस ईश्वर के बारे में सोचना है, यहाँ पे रोशनी दिख जाए, मेरा ये तीसरा नेत्र खुल जाए, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, आंख बंद किए हैं, सोच रहे हैं यस, और उसी समय वही वो पल होता है जिसमें में ढेर सारी दुनियादारी की बातें क्या होने लगता है, कौंधने लगता है। इट्स हैपन, होता है कि नहीं होता है? यस मैम, यही तो होता है। यही होता है। दिस इज द प्रॉब्लम विद एवरीवन। यही प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम से जिसने अपने आप को छुड़ा लिया, हटा लिया, है ना, वो रियली कुछ पा गया लाइफ में, वो लाइफ की खुशी को गेन कर जाता है। तो जस्ट ट्राई टू मेडिटेट योरसेल्फ, जस्ट ट्राई टू नो योरसेल्फ। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, मे भी कई महीने लग सकते हैं। हारना नहीं है। Going on, please keep on going, keep on going. As you know, practice makes the man perfect. Practice तो करना है, तभी तो perfection आएगा ना। If you want to get the real pleasure of life, please try to meditate yourself. और ये meditation कब होगा? जब आपके पास समय होगा आपके लिए, खुद के लिए। You get some time for you. मैं ये नहीं कहती कि आप कॉर्नर में बैठ जाओ, घंटे भर बैठे रहो, उलूल जुलूल बातें सोचते रहो। 5 मिनट ही सही, 5 मिनट से शुरुआत करते हैं ना, फिर वो धीरे धीरे 5 मिनट, 10, 20, 1 घंटा, आधा, 2 घंटे, इसमें तब्दीली हो जाएगा, उसमें रियल आनंद आने लगेगा। और वो पल आपके लिए एक्सोटिक होगा, वो पल आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए होगा। तो ट्राई टू डू, करो भाई। अभी कौन सी अफरा तफरी है, कोरोना काल है, स्कूल बंद है, काम भी कम है, तो इस समय तो हम अपने आप को जानने की कोशिश कर ही सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस मैम। बिल्कुल बेटा, दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू। जनरेट योरसेल्फ, क्रिएट समथिंग। दिस इज द रिक्वेस्ट ऑफ द पोएट एंड इट इज माय रिक्वेस्ट आल्सो। अब देखो, oh yes, we would all be together in a sudden strangeness. Sudden at once. Sudden का मतलब at once. Strangeness, surprising. Oh, what a beautiful moment, what a exotic moment, without rush, without the sound of engines. यही वो पल होगा, that moment will create the feeling of togetherness, that moment will create the feeling of mutual cooperation and understanding. That is the requirement.
in a sudden strangeness. That will be the surprising moment कि जिसको आप अपना एनिमी समझने लगते हैं कि oh no, he is not my friend, he is my enemy, without any reason, without any purpose, without any cause. भाई मेरा ये मानना है जो हमारा मित्र नहीं हो हमारा दुश्मन भी नहीं हो सकता, ठीक है? छोटी सी लाइफ है, सच अ स्मॉल लाइफ, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो क्यों एनिमिटी को पाले भाई? आसान नहीं है, टफ जॉब है। एनिमिटी तो हमारे अंदर जम के भरी रहती है ना। हेलो, कहीं भी yes. सबसे पहला काम क्या करते हैं? एनिमिटी की भावना, जेलस की भावना, ये सबके अंदर आ जाता है, सबके अंदर है। इसी को तो खत्म करना है ना। जब आप समझ जाएंगे कि लाइफ इज वेरी स्मॉल, वेरी शॉर्ट, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मोमेंट, यही पल, आज का पल, ये समय, ये हमारा है। दिस इज माई टाइम, दिस इज योर टाइम। आज में जीना है, तो आज में जीने के लिए क्रिएट द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, टुगेदरनेस। नहीं, वो मेरा दुश्मन नहीं है, he or she is my friend। हम एक दूसरे के लिए हैं, we are the human beings। ये तब होगा जब आप दूसरे के दर्द में शामिल होना सीख जाएंगे। यानी कि अगला गिर गया तो वाह अच्छा हुआ, बड़ा मजा आया, होता है ना? हेलो, होता है कि नहीं होता है? यस मैम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिखावा करते हो, चोट यस लग गई मैम, होता है, यही तो होता है। यही तो होता है जिंदगी में कि अगला परेशान है तो हम खुश है कि नहीं है? यानी दूसरे की परेशानी से आपको हैप्पीनेस मिलती है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस? जब अगला परेशान है। तो ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। अगर अगला दुखी है तो आपको भी क्या करना चाहिए? आपको भी उसके गम में शरीक होना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए कि ओ माय गॉड कितना बुरा उसको लग रहा होगा। तो लोग ये समझते हैं ओ माय गॉड ये मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, तो मैं क्यों गम में रहूं, मैं क्यों दुखी मना। ओह, डोंट थिंक, प्लीज क्रिएट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, कोऑपरेशन। और वो आपको क्या देगा? अगर आपके बारे में कोई बुरा भी सोचता है, लेट इट बी, सोचने दो, आप मत बुरा सोचिए प्लीज। हंसी आ रही होगी कि मैडम क्या बोल रही हैं? हाँ, यस मैम। या इट इज मैम, इट इज नो मैम, रियल फैक्ट है। रियल फैक्ट, इट इज अ सरप्राइजिंग थिंग बेटा, कि अगर हमारे लिए कोई बुरा सोचता है तो हम भी क्या करते हैं? बात नहीं करते उससे। हमारे अंदर भी नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, उसके लिए ढेर सारा नेगेटिविटी हम पैदा कर लेते हैं ना। और वो नेगेटिविटी हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है। तो बी पॉजिटिव। आपका आभा मंडल ऐसा होना चाहिए कि आपकी गिरफ्त में जो भी आए वो कहे वाओ किस शख्स से मुलाकात हुई, कितना अच्छा लगा। ऐसा बनो। तो ऐसा कब बनोगे माय डियर? जब आपके पास अपने लिए समय होगा, जब आप अपना एनालिसिस करेंगे, अपने पॉजिटिव अपने नेगेटिव को देखेंगे, है कि नहीं? कौन करता है अपना पॉजिटिव पॉइंट लिखना, अपना नेगेटिव पॉइंट लिखना? You do please, you try to do positive, very good। नेगेटिव को क्या करना है? कट करना है। Every day I have to cut my negative points। Oh, without rush, without engine, we would be all together। Think about that moment, that moment will be the exotic moment, pleasing moment, when there will be no rush, no sound of truck, buses, cars, etc. and etc. We would all be together in a sudden strangeness। Suddenly दिमाग में, माइंड में ये क्रिएशन आएगा, ओह मैं तो ऐਵੇਂ ही लड़े जा रहा था,
मैं तो यूं ही भटकते जा रहा था या जा रही थी, वो सब गलत था। नाउ दिस इज द राइट पॉइंट, दिस इज द राइट पाथ। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब एक दूसरे के लिए, सब एक दूसरे पे निर्भर है। डू समथिंग फॉर योरसेल्फ आल्सो एंड फॉर अदर्स आल्सो, है ना। अपनी आत्मा को क्या करो, प्योर करो, प्योर प्योर। अपनी नेगेटिविटी को खत्म करो, तब जाके टुगेदरनेस की भावना आएगी, तब जाके वी विल बी टुगेदर। है कि नहीं? तो समझ आया? गॉट इट? हाँ जी मैम। चले आगे? Yes, आगे चले? यस मैम। गुड। यस, फिशरमैन। अब यही बताया गया इस पैराग्राफ में कि दिन भर काम करते करते इंसान अपने आप को भूलता जा रहा है, अपने आप से दूर होता जा रहा है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, इन द कोल्ड सी। फिशरमैन मछुआरा जो समंदर में बेचारा क्या करता है, जाता है, जाल फेंकता है, जस्ट टू गेट फिशेस, जस्ट टू सर्वाइव। वो फिशेस क्या है उसके लिए? मीन्स है, किसके? सर्वाइवल के मीन्स है। तो जितना जल्दी हो सकता है वो समंदर के किनारे में चले जाता है और अपने जाल को फेंकता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, cold sea near the poles would not harm whales. पोएट क्या कहते हैं फिशरमैन से कि बड़ी बड़ी मछलियों को हार्म मत पहुंचाओ, कुछ पल के लिए प्लीज रुक जाओ, अपने इस काम को रोक दो, थम जाओ, बैठ जाओ वही किनारे पे। ओके, आज नहीं मछली पकड़ूंगा, नहीं पकड़ूंगा तो क्या मर जाऊंगा क्या? नहीं मरूंगा, जिंदा ही रहूंगा। बैठे रहो किनारे पे, देखते रहो वेव्स को, वो समंदर की लहरें जब उफान मारती हैं तो क्या सीन होता है, क्या नजारा होता है। जो एंजॉयमेंट आपको मछली पकड़ने में नहीं आएगा, वो प्लेजर आपको समंदर की लहरें देंगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने जॉब को छोड़ दें और समंदर के किनारे बैठे रहें, बस लहरों को देखते रहें। नहीं, आपको सरवाइव भी करना है, अपने लिए मीन्स भी तलाशना है। वो तो हो गया बाहरी आउटपुट, बट इनवर्डली आउटपुट आप क्या कर रहे हैं? आप अपने सोल को नरिश करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या डाइट दे रहे हैं भाई आप अपने सोल को नरिश करने के लिए? तो get the time, have some time, give some time for your soul. बैठ जाओ चुपचाप किनारे में कहीं, नेचर के साथ, enjoy the scenery, enjoy the sights. पार्क में चले जाओ भाई, जो करने से आपको खुशी मिले, जो करने से बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं जो गलत भी है ना, और वो आपको खुशियां देती है। प्लीज मेरा कहना वो नहीं है कि आप गलत करके खुश होइए, नो। अच्छा कर्म करिए, अच्छे डीड्स करिए, उससे आपको खुशी मिलेगी। तो रिक्वेस्ट है मछुआरों से, फिशरमैन से कि प्लीज मछलियों को हार्म मत पहुंचाओ, बड़ी बड़ी मछलियों को मत पकड़ो, रुक जाओ फॉर द टाइम बिंग। Fisherman in the cold sea would not harm wealth, and the man gathering salt, and the man gathering salt would look at his hot hands, है ना। और ये भी पता है ना कि समंदर के खारे पानी में से ही नमक भी निकलता है। वो इतना खारा होता है कि जो व्यक्ति सॉल्ट इकट्ठा करता है उसके हाथों में बबल्स निकल जाते हैं, छाले निकल जाते हैं, और वो इतना ज्यादा व्यस्त है अपने काम में, सॉल्ट को इकट्ठा करने में, कि ही इज नॉट गेटिंग टाइम टू सी हिज इंजर्ड हैंड। अपने बबल्स को देखने का भी उसे फुर्सत नहीं है। तो प्लीज डोंट डू लाइक दिस, गिव सम टाइम टू योरसेल्फ,
आप अपने बबल्स को देखिए, उसमें बाम लगाइए, ऑइंटमेंट पुट करो, ट्राई टू कंसोल योरसेल्फ। आप अपने आप को भी कंसोल करो, दूसरों को भी कंसोल करो। पर ऐसा कब होगा? जब हमारे अंदर कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी, कोई केओस नहीं रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। ओके, आज मुझे काम नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू एनी वर्क। आज मैं कंप्लीट अपने लिए हूं, आज मैं वही करूंगी जिससे मुझे खुशी मिलती है। मे बी मेडिटेशन, मे बी शॉपिंग, मे बी ईटिंग, मे बी स्लीपिंग, मे बी स्टडिंग, मे बी राइटिंग समथिंग, मे बी कुकिंग। बट ये पल, आज का दिन, ये केवल मेरा है, मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। हफ्ते में एक दिन तो अपने लिए निकालो। एक दिन, मान लो एक दिन बहुत ज्यादा हो गया, 1 घंटा तो अपने लिए निकालो। तभी तो जान पाओगे ना अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, अपने नेगेटिव पॉइंट्स। क्योंकि हर आदमी को लगता है आई एम परफेक्ट, आई एम गुड, आई एम बेस्ट। बट माय डियर चाइल्ड, नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज बेस्ट। सबके अंदर प्लस माइनस है। कहीं प्लस का पलड़ा भारी है, कहीं माइनस का पलड़ा भारी है। तो आपको क्या करना है? अडॉप्ट द प्लस पॉइंट ऑफ अदर्स। And the man gathering salt would look at his hurt hands. This is the request of the man who is gathering salt. उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने हर्ट हैंड्स को देखो, उसमें जो बबल्स हो गए हैं, छाले हो गए हैं, उसमें ऑइंटमेंट लगाओ। तो ये कब होगा? जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, इतने हरी में रहते हैं, घर का काम भी करना है, बाहर का काम भी करना है, जॉब भी करना है, और घर पे जाके भी जॉब करना है। ओके, तो समटाइम्स रोटी बनाते बनाते पता चला हाथ जल गया। ओ माय गॉड, जल गया, नो प्रॉब्लम। बट फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? जल्दी से हमारी रोटी पक जाए, है ना। कभी कभी रोटी फुलाते फुलाते पता चला कि फिंगर जो है उसके अंदर चला गया। ओके, ओ नो प्रॉब्लम। बाद में ध्यान आता है, ओ यार यहाँ पे तो जल गया, तब हम कुछ लगाते हैं यहाँ पे। तो इतनी जल्दीबाजी क्यों है? एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ माय डियर चाइल्ड? कि 99 का चक्कर छोड़ो, ये आना जाना लगा हुआ है। दिस इज द रियल फैक्ट। जो भी दिखाई दे रहा है, इट इज नॉट फॉर एवर, इट इज नॉट फॉर एवर, फॉर द टाइम बीइंग। सबको जाना है, हमको, आपको, सबको जाना है, पर टाइम नहीं पता है। वी डोंट नो द टाइम, फिक्स टाइम। तो जाने से पहले कुछ अच्छा कर लो ना, कि जाने के बाद लोग आपको कहें कि अच्छा था इंसान। लोग कहें या ना कहें, अंतिम समय में आपको मलाल न रहे, ओ आप, मैंने बड़ा गलत किया। नो, आई डिड गुड। Whatever I did, that was good for the humanity, that was good for myself, that was good for my family, for my institution. कि जाने के बाद आपके अंदर कोई मलाल न रहे, कोई गिल्ट ना रहे, ऐसा बनो। मैम, हाँ, यस मैम, बेटा। ये एक, यदि बंदा अपनी परेशानियों के बारे में नहीं सोच रहा तो ये भी तो एक अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं ज्यादा, वो चीज हमारे साथ होती है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। यदि हम अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, यदि हम अपने लिए बुरा सोचते हैं, हर बात में परेशानियों को ही सोचते हैं, तो हमारे साथ परेशानियां होती है। तो किसी बंदे का हाथ जल गया, फिर हाथ कट गया, तो वो बार बार ये सोच रहा है कि इस काम करने से हाथ जलेगा, तो वो बंदा खुश नहीं रह पाएगा। और यदि सोच रहा है कि जल गया, चलो कोई नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या है? देखो, व्हाट आई वांट टू से कि लाइफ इज द मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, है कि नहीं है? तो सामान्य रहो। क्या रहो? बी न्यूट्रल, बी न्यूट्रल। खुशी है वो भी ठीक, गम है वो भी ठीक, लेकिन लेकिन लेकिन
अपने गम का रोना, मैं कभी ये तो नहीं कहता कि हमेशा अपने गम को लेके रोते रहो, परेशान रहो, खुद भी परेशान रहो, दूसरों को भी परेशान करो। नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको पहले तो ये जानना है कि जीवन यही है, जीवन आना जाना है कि नहीं है? ये जीवन का साइकिल है, जीवन मरण, खुशी गम, दिन रात, खुशियां भी हैं, गम भी है, किसी के पास खुशियां ज्यादा है, किसी के पास गम ज्यादा है, किसी के पास गम कम है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इन तमाम चीजों के अलावा भी गिव सम टाइम फॉर यू, अपने लिए समय निकालो कि अगर गम है तो उसे कैसे निजात पाया जाए, उसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यही है। क्या सोल्यूशन है भाई? मान लीजिए कोई बहुत गरीब है, पॉवर्टी में जूझ रहा है, तो वो यही कोशिश करेगा ना, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस पॉवर्टी। मैं तो मर ही रहा हूं, मेरे बच्चे तो कम से कम ना मरे। ऐसे सोचते हैं कि नहीं माँ बाप? सोचते हैं ना? यस मैम, बट इट इज द मेन, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जब हम यदि अपने बारे में ये सोच लेते हैं कि हम गरीब हैं, तो इट्स मीन हम हमेशा गरीब ही रह लेते हैं। यदि हम मान लें कि हम गरीब हैं तो क्या हुआ? ये ओके, नो नो, देखो अगर पापा गरीब है तो बेटा क्या सोचता है, नहीं मेरे पापा ने जो जीवन जिया वो मैं नहीं जीऊंगा और मैं अपने पापा को बहुत प्रॉस्पेरस लाइफ दूंगा। बच्चा करता है कि नहीं करता है? यस मैम, दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड, बट many of us are thinking that कहते हैं we are यार हम तो ऐसे ही हैं, हमारे भाग्य में ऐसा ही है, why me only, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। कहते हैं ना, सबके साथ होता है, किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ ज्यादा होता है, बट जिसके साथ ज्यादा होता है बेचारा वो होपलेस हो जाता है, वो परेशान ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? उसको हेल्प करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको नरिश करना है और उसको बताना है कि तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ है। बी पॉजिटिव है कि नहीं है भाई? कीपिंग क्वाइट का यही थीम है, बी पॉजिटिव, गेट सम टाइम फॉर यू। पॉजिटिव एटीट्यूड मैम, हाँ, कीप पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉट बी पॉजिटिव, कीप पॉजिटिव एटीट्यूड, कीप पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन ऐसा कब होगा? जब हम अपने आप को जानेंगे ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो कि व्हाट इज द प्लस एंड माइनस इनसाइड योर माइंड। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो यस मैम, कभी ये कहता है कि भाई इतना तो आपके पास समय होना चाहिए, दिन भर हाय हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। लिसन टू मी भाई, यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में सर्वाइवल की बात हो रही है कि हाउ टू सर्वाइव। तो सर्वाइवल के लिए मीन्स क्या है? मछली पकड़ना, है ना। बेचारा सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है, सॉल्ट इकट्ठा करते करते सारे हाथों में छाले पड़ गए हैं, बबल पड़ गए, इतना भी क्या पैसा, इतना भी क्या पीछे भागना। क्या हम अपने आप को भूल जाए, अपने जख्मों को भूल जाए? कवि का ये मतलब है, दीवानगी अच्छी है बट इतनी भी दीवानगी अच्छी नहीं है कि आप अपने आप को भूल जाओ। इज इट क्लियर? पैसे के पीछे जो पागल है, हाय पैसा, तो उसको भी जाना है, और जिसके पास पैसा है वो भी जाएगा, जिसके पास नहीं है वो भी जाएगा। बुलावा सबका आना है ना। यस मैम। यही तो नहीं समझ पाते हैं, आम आदमी नहीं समझ पाता। कंपटीशन का जमाना है ना मैम। कंपटीशन के जमाने में भी बच्चे अपने लिए समय निकालो और सोचो कोई कंपटीशन नहीं। नो, डोंट हैव द फीलिंग ऑफ कंपटीशन। फेयर कंपटीटिव भावना होनी चाहिए, फेयर कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। ठीक है? इट्स रॉन्ग मैम कि कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन तो एंशिएंट टाइम से ही रहा है, तो शुरू से रहा है, यस मैम। जब से हम, यस मैम, जब से हम पृथ्वी पे आए तब से घर में, परिवार में, समाज में, स्कूल में, डिपार्टमेंट में, एवरीवेयर कंपटीशन। यस मैम, है ना। तो कंपटीशन नहीं होता तो बड़े बड़े युद्ध होते हैं। किस लिए? कंपटीशन के चक्कर में पड़ेंगे, कोई प्रोग्रेस। युद्ध हो गया, कितने नरसंहार हो गए। हाँ, उस युद्ध का क्या फायदा कि विक्ट्री को भोगने के लिए कोई सर्वाइवल ही ना बचे। क्या फायदा, है ना। घर पे बंटवारा क्यों होता है? क्यों होता है युद्ध? पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, नेगेटिविटी होता